Summarizing chapter number 3 of OC, which is related to entrepreneurship development. इसमें फर्स्टली 3 कंसेप्ट्स है. एक है एंटरप्राइज. एंटरप्राइज मतलब क्या? द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द बिजनेस एक्टिविटी इज कंडक्टेड. उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर मतलब द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटी. एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब द एक्टिविटी विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर थ्रू द एंटरप्राइज. तो ये सब कंसेप्ट्स यहाँ पे आते हैं. अभी इसमें हमको जो क्वेश्चंस है दे आर रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योर. एक तो उन्होंने हमको दिए हुए हैं एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस, मतलब एंटरप्रेन्योर को क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए या उसको क्या क्या करना चाहिए while he is managing or while he is running the organization. So firstly he needs to determine the objectives of the organization. तो क्या करना है? पहले determination of objectives. Then he should do innovation, use new ideas while running the business. Next is he has to maintain good relations with the people which are associated with the business. He has to do organizing of funds, use proper new technology in the business. He has to develop market for his products or services. He has to increase his customer base and he has to take decisions. तो ये सब क्या है? These are functions of the entrepreneur. functions में क्या क्या आता है? हम अगर नॉर्मल इंपॉर्टेंटली इसमें से देखने जाए तो फर्स्टली क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद टेकिंग डिसीजंस. नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग फंड्स. उसके बाद innovation and good relations. Fine. Yes, quickly go on. Determination of objectives, taking decisions, organizing funds, innovation and good relations. What is this? These are the functions of the entrepreneur. What an entrepreneur needs to do when he is managing or running the enterprise. Once again, functions. Determination of objectives, taking decisions, organizing funds, innovation and good relations. Yes. नेक्स्ट आते हैं एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें क्या अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए सो दैट ही इज अ गुड एंटरप्रेन्योर. तो उसमें क्या है? सबसे पहले ही शुड बी कॉन्फिडेंट. ही शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट ही शुड हैव फ्यूचर विजन, मतलब उसको एक विजन होनी चाहिए. How he sees his organization, what decisions he takes for the organization will depend on that. Next है intellectual capabilities. So he should be intelligent, he should be able enough to take the decisions to expand the business, etc. Next है technical knowledge होना चाहिए. Of course क्या है? Technically he should be sound to run a proper business enterprise. He should be hardworking. He should be optimistic. He should always have a positive approach towards conducting the business activity. He should have good communication skills and he should have a risk bearing capacity. So again हम यहाँ पे important चीजें ले सकते हैं. सबसे पहले क्या है? रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. बिजनेस जब आता है उसके साथ साथ रिस्क एसोसिएट होती है, तो ऑफ कोर्स ही शुड बी अ गुड रिस्क बेरर. दूसरा क्या है? ही शुड हैव फ्यूचर विजन and he should be highly optimistic, hardworking and good communication skills. पांच important points है. क्या है entrepreneur के characteristics? He should have the risk bearing capacity, he should have the future vision, then highly optimistic, hardworking and communication skills. Okay, once again entrepreneur के functions क्या है? What he should do? He should determine the objectives, taking decisions, funds. Perfect. Once again, determination of objectives, taking decisions, organizing funds, innovation and good relation. Next क्या है? Characteristics of entrepreneur. क्या क्या होने चाहिए? Risk bearing capacity, future vision, highly optimistic, hardworking and communication skills. Characteristics of entrepreneur: risk bearing capacity, future vision, highly optimistic, hard work and communication skills. Fine. Okay. Next आता है entrepreneur की competencies. ये थोड़ी near and about same है to the characteristics part.
तो कॉम्पिटेंसीज मतलब अगेन क्या, गुड क्वालिटीज विच मेक हिम अ बेटर एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे क्या है, अगेन कुछ कुछ चीजें सिमिलर हो सकती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की है, उसके साथ साथ ही शुड हैव कॉन्फिडेंस, देन ही शुड हैव क्रिएटिविटी, यहाँ पे कुछ बोला था ना, इनोवेशन, यस। नेक्स्ट है ही शुड हैव ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो अलग अलग पॉइंट्स इसमें से भी ले सकते हो। अगर दो यहाँ पे कॉमन है तो वो कौन से है, एक है कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे इनोवेशन है, उधर क्या है, क्रिएटिविटी। तो वो 3 पॉइंट्स कॉमन है, तो ये 3 पॉइंट्स भी आपने लिए तो भी चलेगा, फाइन, ओके। सो क्या क्या होंगे यहाँ पे, एक तो है डिसिप्लिन है, कॉन्फिडेंस है, ओपन माइंडेडनेस, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। ग्रेट, नेक्स्ट अभी आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, मतलब द बिजनेस एक्टिविटी विच इज बीइंग कंडक्टेड। तो एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सबसे पहले इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट के लिए काम किया जा रहा है जहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट डिराइव कर सके, सो इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज इन्वॉल्विंग इनोवेशन, इट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, यहाँ पे और क्या है, रिस्क बेरिंग बोल सकते हो, एंड मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। सो फर्स्टली क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो, तो वो कौन सी एक्टिविटी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है फॉर अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नया बिजनेस चालू करना है, सेटअप करना है, तो उसके लिए क्या लगता है, इनोवेशन, एंड इट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। उसके साथ साथ मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप होनी चाहिए एंड रिस्क बेरिंग। तो यहाँ पे हम बेसिकली फिगर आउट करें जो जो कॉमन पॉइंट्स है, जैसे रिस्क बेरिंग हर जगह आया हुआ है, इनोवेशन हर जगह आया हुआ है, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स याद रखोगे तो बहुत सारे आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, फाइन। मैक्सिमम आंसर्स कितने पॉइंट्स के लिए आते हैं यहाँ पे, 4 मार्क्स के लिए, तो 4 से 5 पॉइंट्स लिखे तो भी इट इज सफिशिएंट, फाइन, ओके। सो एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स इनोवेशन, इट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, एंड लास्टली रिस्क बेरिंग। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब ये जो बिजनेस एक्टिविटी चल रही है उसको डेवलप या और बेटर तरीके से किस तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली ट्रेनिंग, एंड नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ट्रेनिंग दिया जाता है किसको, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको बिजनेसेस चालू करने हैं, जो यूथ है उनको, ताकि मोर एंड मोर पीपल फील दैट दे शुड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एक्टिविटीज, तो उनके लिए ट्रेनिंग एज वेल एज ये ईडीपीज जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये जो है कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे जो पैराग्राफ्स या कीवर्ड्स मेंशन्ड है उसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, कोई भी आंसर आता है इसके रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिलेटेड, उसका इंट्रोडक्शन फॉर्म में ये यूज किया जा सकता है। अब ईडीपी में किया क्या जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या किया जाता है, सो फर्स्टली यू हैव अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहां पे वो क्या कर सके, अपने बिजनेसेस चालू कर सके। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है जिनमें वो कैपेबिलिटीज दिखती है कि दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस वेंचर्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, मतलब किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन वो फॉर्म कर सकते हैं, इसको फिगर आउट किया जाता है। देन द एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स प्लेस, जहां पे उनको गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उनको कहाँ से रिसोर्सेस वगैरह अवेलेबल करवा के लेने हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, सो दे आर मेड अवेयर अबाउट द सिचुएशंस ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्रीज और इन द ओवरऑल इकोनॉमी। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल, सो ऑफ कोर्स उनको ट्रेनिंग देना है तो किससे देना पड़ेगा, एक्सपर्ट से, तो उसके लिए ट्रेनिंग पर्सनल का भी सिलेक्शन होता है जो उनके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देना है। नेक्स्ट है एक्चुअल ट्रेनिंग टेक्स प्लेस, एंड सिर्फ ट्रेन करके छोड़ नहीं दिया जाता है, क्या किया जाता है, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप भी किया जाता है। सो इफ से एनी पर्सन इज स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर,
बट नॉट बीइंग एबल टू रन इट प्रॉपरली, उनको अगेन गाइड किया जाता है व्हाट ऑल स्टेप्स दे कैन टेक टू अगेन रन द वेंचर इन अ प्रॉपर वे. सो ईडीपी इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स. क्या क्या स्टेप्स? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को चूज किया जाता है. सिमिलरली आप यहाँ पे बोल सकते हो, नहीं नहीं, यू कैन गो इन अ लाइन. फर्स्टली इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज किया जाता है, फिर किसको ट्रेन करना है वो सिलेक्ट किया जाता है, और कौन ट्रेन करेगा वो सिलेक्ट किया जाता है. सो सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सन है. नेक्स्ट आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन उनको बनानी है. नेक्स्ट आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस मेथड से ट्रेनिंग करना है, और एक्चुअल ट्रेनिंग 2 बार आया हुआ है. यू कैन टेक इट वंस एंड देन मॉनिटरिंग एंड फॉलो. फाइन. हाँ है, बट हाँ प्रोग्राम बनाते हैं. फाइन, दैट इज ओके, यू कैन क्लब इट अंडर वन थिंग. हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कौन करता है? तो वेरियस एक तो ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, या गवर्नमेंट से भी अलग अलग इनिशिएटिव्स जो है वो लिए जाते हैं. जैसे आपने अभी करंटली देखा होगा कि एमएसएमई रिलेटेड बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट होते हैं. सिमिलरली स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है. तो ये सब क्या है? दिस इज रिलेटिंग टू हाँ एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट करना. या आप देखते हो उसमें आजकल वो चल रहा है ना कि कोई जैसे इलेक्ट्रिशियंस हो गए या रिपेयर वर्क का, इस चीजों का भी ट्रेनिंग दिया जाता है. तो उससे क्या होता है, लोग कुछ ना कुछ एटलीस्ट छोटा हो बट अपने बिजनेसेस क्या करे, चालू कर सके. तो गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स इनिशिएटिव्स, ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो ये इनिशिएट करते हैं. So yes, what is done? Arrangement of infrastructure. Next is selection of potential entrepreneur, identification of enterprise, actual training program, training personnel का selection, training method का selection and monitoring and follow. अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करने के? तो फर्स्टली टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन द कंट्री, कि कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स बढ़े, इसलिए ये प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. अगर आप कुछ एरियाज में जहां पे से नेचुरल रिसोर्सेज अबेंडेंटली अवेलेबल है वहां पे ये ईडीपीस कंडक्ट करोगे, तो उधर के लोग क्या वो रिसोर्सेज यूज करके अपने सेटअप्स बना सकते हैं? यस. तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी प्रॉपरली यूज हो पाएंगे, प्लस वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये भी सब हो जाए. नेक्स्ट है, हाँ एज इन, हाँ ह्यूमन रिसोर्स का होगा ना. ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, एवरीथिंग इज बीइंग डन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स ओनली. ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या? बिजनेस में कोई भी ह्यूमन एलिमेंट जो इन्वॉल्व होता है वो सब ह्यूमन रिसोर्स ही है, राइट? हाँ. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. तो अगेन जैसे हमने बोला यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. सिमिलरली इसके कारण क्या होता है, अगर ऐसे एरियाज में आप अपनी इंडस्ट्रीज या वेंचर्स चालू कर रहे हो जहाँ पे क्या है उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो बाकी की फैसिलिटीज भी उस एरिया में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है. नेक्स्ट इज वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज. तो ये स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को भी क्या होता है, प्रमोट किया जाता है, उनको स्कोप मिल जाता है टू वर्क इन अ बेटर वे. सो एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ के लिए, रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए, बैकवर्ड रीजन्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए या डेवलप करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एंड वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज. ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की. नेक्स्ट अभी टू इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. एक है स्टार्टअप इंडिया और दूसरा है स्टैंड अप इंडिया. स्टार्टअप इंडिया के अंदर क्या किया जाता है, इट बेसिकली फोकसेस ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग और फंडिंग सपोर्ट एंड गिविंग इंसेंटिव्स एंड इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप्स एंड इंक्यूबेशन. तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, जो लोग अपने नए वेंचर्स चालू करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट के एंड से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है by having a simple and easy process of formation or operation for them. फंडिंग सपोर्ट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. एंड इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं और जो इंडस्ट्रीज ऑपरेट होते हैं इनकी पार्टनरशिप्स होती है. तो उधर से जो स्टूडेंट्स है उनको ट्रेनिंग मिलती है, प्लस ये ऑर्गेनाइजेशंस को क्या मिलती है,
एम्प्लॉयज जो है वो ट्रेंड एम्प्लॉयज उनको अवेलेबल हो जाते हैं. तो दैट इज इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप. तो ये सब होने के कारण क्या होता है, जो भी पर्सन है जो नया बिजनेस वेंचर चालू करने वाला है उसको प्रमोशन मिलता है, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है टू हैव अ प्रॉपर एंटिटी फॉर हिमसेल्फ. अब ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, 10,000 करोड़ रुपीस का जो है स्टार्टअप फंडिंग पूल इकट्ठा करना है. मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, जिनको फाइनेंस करना है, जिनको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उनसे ये पूल क्रिएट किया जाता है, जहां से क्या किया जाता है, लोगों को इन्वेस्टमेंट या फंडिंग जिनको अक्वायर करनी है अपने बिजनेस के लिए वो प्रोवाइड कर सके. तो ये पूल जनरेट करना है. देन रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस. स्टार्टअप्स वगैरह जो चालू करेंगे उनका कोई ना कोई इन्वेंशन रहेगा, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगी जो वो यूज कर रहे हैं या जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनको रजिस्टर करके लेना पड़ेगा ताकि कोई दूसरा ना यूज करे. तो यहाँ पे पेटेंट रजिस्ट्रेशन में उनको कंसेशंस मिल जाते हैं. इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू एंश्योर अ 90-day एग्जिट विंडो. ये क्या होता है, whenever a company needs to go into liquidation, उनको ये कोड के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू कंपनी बंद करने का प्रोसेस करना पड़ता है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. मतलब आप सडनली वहां पे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोन्स नहीं पे कर सकता हूँ. ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू गो इनटू दिस कोड. जहां पे क्या होता है, जहां पे आपकी एक बार ऑर्गेनाइजेशन चली गई तो वहां एक रिवाइवल का ट्राई किया जाता है, फिर भी ना हो तो फाइनली बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाता है. तो ये एक्चुअली जो नॉर्मल पीरियड रहता है वो 180 डेज या ज्यादा बाकी कंपनीज के लिए रहता है. बट ये स्टार्टअप्स के लिए क्या किया है, 90 डेज का किया है. क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन स्टार्टअप अपना चालू कर रहा है और वहां पे उसको लॉसेस फेस हो रहा है, वो बंद करना चाहता है, तो वो इजीली वो बंद कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ क्विक एग्जिट विंडो. तो ये कंप्लायंसेस जो है रिड्यूस्ड फॉर्म में उसको करने पड़ेंगे. नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शंस. जो बहुत सारे इंस्पेक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे सिंपल लेते हो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रहता है, तो ये बहुत सारे ऐसे इंस्पेक्शंस रहते हैं. 3 इयर्स से क्या है, बहुत सारे इंस्पेक्शन से उनको छुटकारा मिलता है. कैपिटल गेन टैक्स से भी 3 इयर्स के लिए एग्जाम्पशन मिलता है. टैक्स में भी कुछ कंसेशंस या बेनिफिट मिलते हैं फॉर 3 इयर्स. ऑफ कोर्स ये किसके लिए क्या मिलता है ये अलग अलग स्टार्टअप्स के ऊपर डिपेंड करेगा. बेसिक यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है. नेक्स्ट है सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस. तो यहाँ पे उनको क्या है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को जैसे दिखाना है, प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ आउटसाइडर्स, इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स. तो ये सब चीजों के लिए उनको ये टाइप के कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं. नेक्स्ट, टारगेट 5 लाख स्कूल्स, इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स. So this is what they were talking industry academia partnerships में. Encourage entrepreneurship within the country, promote India across the world as a startup hub, and build startup oasis as Rajasthan incubation center. जहाँ पे लोग क्या कर सके, आके यहाँ पे अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सके एक्सेट्रा. एंड प्रमोट इंडिया अक्रॉस एज अ स्टार्टअप हब, मतलब बाहर के कंट्रीज में से लोगों को भी यहाँ पे क्या किया जाता है, इन्वाइट किया जा रहा है टू हैव देयर ओन स्टार्टअप्स इन आवर कंट्री. फाइन. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप. क्या क्या है, 10,000 करोड़ का फंडिंग पूल, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, इन बैंक्रप्सी कोड एग्जिट, 90 डेज का विंडो है, फ्रीडम फ्रॉम इंस्पेक्शंस, फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स एंड फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर द फर्स्ट 3 years. नेक्स्ट है सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस, involve 10 lakh children in innovation related programs. Next, encourage entrepreneurship within the country as a startup hub. Fine. Okay. Next scheme है स्टैंड अप इंडिया स्कीम. स्टैंड अप इंडिया स्कीम में क्या बोला गया है, देयर इज अ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू एंटर इनटू द स्कीम. क्या है, यू शुड बी SC, ST or woman entrepreneur above 18 years of age to get the benefit of this particular scheme. यहाँ पे क्या होता है, लोन्स फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ये कैटेगरी में फॉल होना चाहिए. कौन सी कैटेगरी में, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की कैटेगरी में. इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, मतलब यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है, तो SC, ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर हो सकता है. बट इफ इट इज अ कंपनी या इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, वहां पे क्या लगता है, 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोल should be held by either SC, ST और women entrepreneur. किस टाइप के लोन मिलेंगे यहाँ पे,
10 लाख एंड अप टू 1 करोड़। पर्पस क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विसेज सेक्टर में इन्होंने काम करना चाहिए, बट अगेन कवर्ड अंडर विच कैटेगरी? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर। साइज ऑफ लोन कितना हो सकता है? 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। पूरा का पूरा नहीं ले सकते, कुछ तो खुद का फंडिंग भी करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे बेस रेट जो होता है उससे 3% प्लस द टेनोर प्रीमियम, तो इस तरीके से रेट लगता है। सिक्योरिटी, टेनोर प्रीमियम इज बेसिकली जो हमारे बैंक्स वगैरह के रेट होते हैं ना, उसमें ये टेनोर करके एक रेट जो है ऐड किया जाता है, ताकि मतलब नॉर्मल बैंक का जो बेस रेट है उसमें मैक्सिमम 3% प्लस जो प्रीमियम है बेसिक उतना ही ऐड किया जाए। ऐसा नॉर्मल बैंक्स क्या करते हैं, अपना कमीशन वगैरह ऐड करते हैं, अपना 12%, हाँ एग्जैक्टली, अपना 12% जो चल रहा है वो क्या है, वो बैंक का लगाया हुआ उसमें बेनिफिट भी रहता है, ये बेस रेट नहीं है। बेस रेट जो होता है दैट इज द वन व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय द आरबीआई और एनीथिंग, हाँ गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है, तो उसमें थोड़ा ही आगे जाके आप जो है रेट लगा सकते हो। तो बेसिक टेनोर प्रीमियम मतलब बेसिक कमीशन जो है उतना ही ऐड किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फॉर दीज रो या मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो है वहां पे चार्ज होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज जो है वो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज ऑफ कोर्स रखनी पड़ती है। रीपेमेंट के लिए भी कुछ एडवांटेजेस है, क्लॉजेस है, एक बार आप वहां पे गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल फॉर्म में भी यहाँ पे क्या मिल सकता है, लोन जो है मिल सकता है। एंड मार्जिन मनी जो है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ता है, कितना? 25%। मतलब जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तो यहाँ पे मार्जिन मनी भी एज अ सिक्योरिटी वगैरह आपको रखना पड़ेगा, ताकि आपको फंडिंग जो है वो दे दे तो भी देयर इज अश्योरेंस दैट यू आर गोइंग टू बेसिकली रन द बिजनेस। सो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए? स्पेसिफिकली SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अबाव 18 इयर्स ऑफ एज, किसमें? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने चाहिए। इंडिविजुअल नहीं है, अगर ग्रुप एंटिटी है तो 50% ज्यादा शेयर होल्डिंग या इंटरेस्ट होना चाहिए। लोन का टाइप कैसे हो सकता है? 10 लाख टू 1 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर कुछ भी चलता है। लोन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 75%। बेस रेट 3%, 10 और प्रीमियम, इतना इंटरेस्ट रेट लग सकता है। उसके बाद सिक्योरिटीज है, रीपेमेंट है, उसके टर्म्स कंडीशंस है जो काफी क्या होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल लोन्स, दे आर स्टिल फिजिबल और बेनिफिशियल टू द पीपल। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में भी लोन मिल सकता है अप टू 10 लाख, एंड अगर 10 लाख से ज्यादा है तो कैसे लेना है? कैश क्रेडिट के फॉर्म में। एंड मार्जिन मनी रखना पड़ता है कितना? 25% मार्जिन मनी नीड्स टू बी केप्ट। फाइन। इसके ऊपर भी दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट अगर पूछा जाए तो आ सकता है। सो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। फाइन, दैट्स इट। हाँ, एग्रो टूरिज्म का और एक कंसेप्ट है इसमें। एग्रो टूरिज्म के रिलेटेड क्या है पॉइंट्स? एग्रो टूरिज्म इज बेसिकली एग्रीकल्चर, हाँ टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है, बट उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है उसको प्रमोट करना है, और वहां पे टूरिस्ट एक्टिविटीज करके फार्मर्स को जो है एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट की जाती है, नॉट ओनली आउट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच दे आर हैविंग, but also because of the tourism activity which is conducted. Fine. या वही 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 हुरडा पार्टी वगैरह जो होती है वही। चलो, that's it for today. Thank you.